Good morning, students. Today we will cover the chapter number 6. Birds are feathered friends. I hope you can see many types of birds we have in the nature, and they all are different from each other. Some some birds are very small, some birds are very big, some have very sharp eyes, some have very beautiful beak, and some have very beautiful feathers. So birds are the animal with feathers. सिर्फ birds एक ऐसे animal हैं who have feathers and who can fly in the sky. They have wings, but not all the birds use them. You can see there are many birds who don't use their feathers to fly. They have a backbone like us, and female birds also lay eggs to give birth to their small children. Some use their beaks and claws to catch and hold and eat their food. कुछ बर्ड्स अपने बीक्स का यूज़ करती हैं अपना खाना खाने के लिए, पकड़ने के लिए, और कुछ बर्ड्स क्या होते हैं अपने पंजों का यूज़ करती हैं अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़कर खाने के लिए. Birds have streamlined body and this shape helps it to cut through the air. Birds को स्काई में उड़ने के लिए या हवा को काटने के लिए उनकी streamlined body उनकी हेल्प करती है. A bird has a very light body made up of hollow bones and thin plates. Birds की जो bones होती हैं वो बिल्कुल hollow होती है, means there is nothing inside their bones, and बहुत ही ज़्यादा thin plates की जो होती है उनकी bones बनी हुई होती हैं ताकि वो बहुत ही लाइट वेटेड रहें और आसमान में आराम से उड़ पाएँ. The wings are attached to their body with the help of powerful muscles. You can see our every part in our body is attached with strong muscles. As it is in the birds, the feathers are attached to their body with very powerful muscles. Wings are covered with different type of feathers. This means small feathers, flight feathers, down feathers, and so many other type of feathers. A bird's tail helps it to change the direction while flying. We will talk about the beak of a bird. जैसे आप अपने माउथ का यूज़ करते हैं अपना खाना खाने के लिए, other animals use their teeth. So birds use their beak to eat their food. They do not have teeth to eat. They eat with the help of their beaks. Different birds have different kind of beaks. Birds may use their beaks to carry grass, twigs, and other things to make their nest. How many type of beaks a birds have? A parrot has a strong curved beak, which helps to crack and open the nuts and seeds. You know, a parrot stays on the branch of a tree, seeds to eat and nuts, and with the help of its beak, it opens the nuts and crack them with the help of their beaks. Sparrow, pigeon, and peacock have a strong beak to pick up and crush seeds. A duck also have a broad and flat beak. It scoops the muddy water, and the mud and the water flow out through the holes on the sides, and the little plants and the insects from the muddy water stays inside of the beak for the duck to eat. आपने देखा होगा जो डक की बीक होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है. डक पानी में रहती हैं तो वहीं में जो उसे इंसेक्ट्स मिलते हैं खाने के लिए मडी वाटर में से, वो मडी वाटर को स्कूप करती है, अपने माउथ में लेती है अंदर, और उसके बीक के ऊपर 2 होल बने हुए होते हैं जिसकी हेल्प से जो मडी वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है और मड वाटर के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो
बीक के अंदर रह जाते हैं ताकि वो उन्हें खा सके। अ हमिंग बर्ड्स बीक इज़ लाइक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। हमिंग बर्ड इज़ द वर्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड वर्ड की सबसे छोटी बर्ड है। हमिंग बर्ड की जो बीक होती है इट इज लाइक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। इट इज़ अ लॉन्ग hollow tube. The hummingbird sticks its long beak deep into the flower and sips the nectar. जो hummingbird है वो अपना फूड कहाँ से लेती है? फ्लावर्स के नेक्टर से। नेक्स्ट इज ईगल, vultures and owls kill small animals and they have strong sharp hooked beak to tear up the flesh. कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो फ्लैश ईटिंग करते हैं, फ्लैश ईटिंग करना पसंद करते हैं। सो देयर बीक्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, हुक्ड टू टीयर द फ्लैश एंड ईट इट ईजीली। अ वुडपेकर टैप्स द bark of a tree with a sharp pointed beak and make a hole in the bark to pull out insects to eat. Its bill is like a chisel. एक वुडपेकर बर्ड अपनी चोंच या अपनी बीक की हेल्प से किसी भी पेड़ में टैप कर करके उसमें होल बना सकती है और उसके अंदर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो कंज्यूम कर लेती है एंड देन इट यूजेस द होल टू कैप्ट इट्स चिल्ड्रन इनसाइड देम। कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जिनके फेदर्स नहीं होते हैं। दे आर लाइक ईमू और ऑस्ट्रिच। दे कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब हम बर्ड्स के फेदर्स के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। द विंग ऑफ अ बर्ड फ्लैप्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग। आपने किसी भी बर्ड को उड़ते हुए देखा होगा। जब एक बर्ड उड़ती है आसमान में तो वो अपने पंखों को ऊपर या नीचे की तरफ करके उड़ती है। एंड दीज ऑल द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मीन्स व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जब कोई भी बर्ड अपने विंग्स को ऊपर और पीछे की तरफ ले जाती है इट इज़ कॉल्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट। When the wings move downward and forward, it is called downstroke. So there are two types of movements birds do while flying. Feathers. Now we'll study about the feathers of birds. Birds have three kinds of feathers. The body feathers, the flight feathers and the down feathers. The body of a bird is covered with small feathers to keep it warm and these are called down feathers. तो जो birds होती हैं उनकी पूरी बॉडी स्मॉल feathers से covered रहती है जिन्हें हम down feathers बोलते हैं। Flight feathers are long and are attached to wings and tail to help the bird to fly. Flight feathers देखने में बड़े होते हैं और बर्ड्स के विंग्स से अटैच्ड रहते हैं, उनकी टेल से अटैच्ड रहते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। बॉडी फेदर्स आर कवर्ड द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड गिव शेप टू द बर्ड। बॉडी फेदर्स का काम होता है बर्ड्स की बॉडी को शेप देना और उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को ढकना। नाउ वी विल मूव टू द फीट एंड द क्लॉज। Birds use their feet to sit and on the branches and their claws to catch and eat their food to protect themselves from the other enemies. And जो birds होती हैं वो अपने claws का और feet का यूज़ करती हैं किसी भी branch के ऊपर बैठने के लिए, अपने claws को यूज़ करती हैं किसी भी prey को पकड़ के शिकार करने के लिए या फिर खाने के लिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़, खुद को बाकी एनिमल्स से बचाने के लिए या कहीं भी बैठने के लिए। द बर्ड्स हैव 2 to 4 toes on every foot.
आपने देखा होगा आपके जो पंजा बना है या फिर आपका जो फीट बना है उसमें 5 फिंगर्स होती हैं, उसी तरह जो बर्ड्स होती हैं उनके हर फुट में 3 to 4 टोज होते हैं। The flesh-eating animal birds. The flesh-eating birds have strong and sharp claws called talons to hold their prey. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, ताकि वो किसी दूसरे एनिमल को आसानी से पकड़ के खा सकें, उसको बोला जाता है टैलेंस। और उनके एग्जाम्पल्स हैं हॉक्स एंड ईगल्स। अ पर्शिंग बर्ड्स हैव 3 toes in the front and 1 at the back which help the bird to hold on the branch. जो पर्शिंग बर्ड होती हैं उनके फ्रंट में 3 टोज होते हैं और एक होता है बैक में, ताकि वो किसी भी ब्रांच को आराम से पकड़कर बैठ सकें। कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसी बर्ड्स के, इट इज़ लाइक स्पैरो और क्रोज। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। Scratching birds have strong legs with sharp toes and hard claws which help them to dig and find insects from the ground. Climbing birds have strong toes that help them to climb the tree and to cling on them, that is woodpecker and parakeets. Swimming birds, कुछ ऐसे birds भी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं, while they can swim in the water. They have webbed feet. आप लोगों ने फिश देखी होंगी या फिर आप लोगों ने कई अदर एनिमल्स देखे होंगे जो पानी में रहते हैं और उनके जो पंजे होते हैं वो जालीदार होते हैं। वेब्ड मतलब एक जाल और वेब्ड फीट्स मतलब जालीदार पंजे। Their web help them to push the water back while swimming. उनकी जो जालीदार पंजे होते हैं वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करने में उनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग के टाइम पे। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे डक एंड स्वान। वेडिंग बर्ड्स कैन वेड थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट with their long and spread out toes, that is cranes and herons. How a bird make their nest. Birds build their nest to lay eggs. Birds अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए नेस्ट बनाती हैं या अपना एक घर बनाती हैं। They choose very peaceful place and very safe place where no enemy can found them, and or they can also make themselves safe from the bad weather. They use twigs, dry leaves, cotton, thread, feathers, piece of cloth or pebbles to build their. A tailor bird use its beak like a needle to sew leaves with the material like thread and wool, and the nest is made with cotton and wool and dry grass. टेलर बर्ड अपना नेस्ट किस तरह से बनाती है, वो अपनी बीक का यूज़ करती है एज अ निडल, एंड वो कई सारी लीव्स को एक साथ सिल देती है एक टेलर की तरह, और वो सिलने के लिए किसका यूज़ करती है, कॉटन का, वूल का या फिर एक ड्राई ग्रास का। वीवर बर्ड, एक वीवर बर्ड मतलब एक बुनकर बर्ड। इट मेक्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट बाय वीविंग ट्विग्स एंड ग्रास टुगेदर। एक वीवर बर्ड अपना नेस्ट बहुत ही सुंदर बनाती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है ट्विग्स और ग्रास की हेल्प से। अ ईगल एंड वल्चर मेक देयर नेस्ट बाय पुटिंग फ्यू वुडी स्टिक्स टुगेदर इनटू द शेप ऑफ लाइक अ शैलो कप। The woodpecker make holes in the tree, as I told you before, in a tree trunk by picking it, and then lines the hole with the chips of wood. एक वुडपेकर अपनी बीक की हेल्प से किसी भी ट्री में होल बनाकर वहाँ अपना नेस्ट क्रिएट करती है, बनाती है।
The penguin make its nest by collecting few pebbles and stones on the ground. जो पेंगुइन होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर वाटर होता है या पेबल्स होते हैं, तो वो उन्हीं को कलेक्ट करके, स्टोन्स को कलेक्ट करके अपना नेस्ट बनाती हैं और अपने अंडे वहाँ पर देती हैं. केयरिंग ऑफ द यंग. The mother bird keep her eggs warm by sitting on them. एक बर्ड अपने जो अंडों का रखवाली कैसे करती है, उनके ऊपर बैठकर उन्हें गर्माहट देकर. A bird take care of their eggs and make them warm by sitting on them. When the eggs hatch, the chicks come out and the father birds protect them from the enemies. जितनी जल्दी वो एग्स हैच होते हैं, चटकते हैं, उसके बाद जो फादर बर्ड होते हैं वो अपने छोटे छोटे चिक्स की रखवाली करने के लिए दूसरे एनिमल से उनकी रक्षा करते हैं. द चिक्स आर वीक एंड फेदरलेस. जब एक न्यू बॉर्न बर्ड होती है वो फेदरलेस होती है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी फेदर नहीं होता है. द पेरेंट्स फीड दैम एंड कीप दैम वार्म. जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और उन्हें गर्म रखने की कोशिश करते हैं. व्हेन द बर्ड बेबीज़ ग्रो दे लर्न टू फ्लाई. वो उड़ने की कोशिश करते हैं. जैसे आप पढ़ने जाते हो स्कूल्स में, इसी तरह वो उड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना खाना खुद ढूंढ सके. जो मदर बर्ड होती हैं या जो फादर बर्ड होते हैं वो छोटे छोटे बर्ड्स को उड़ना सिखाते हैं ताकि वो आगे से अपना फूड खुद ढूंढ कर खा सके. एंड दे लीव देयर नेस्ट देन. और उसके बाद वो अपना नेस्ट छोड़कर कहीं और चले जाते हैं. आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर. आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.